episode of class 9th book Ganit Manjari. Now the second chapter is Introduction of Linear Polynomial. Basically, first of all, we can say that linear polynomial is of many types like cubic polynomial, quadratic polynomial, polynomial made up of constant and variable. Now we can say that this number is 2, 2, 4, 5, 6. These are known as constant numbers. Variable, which means have they are they are not a fixed value like x, y, z एंड सो मेनी और ऐसा नंबर जिसका कोई फिक्स वैल्यू ना हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। वेरिएबल जिसका कोई फिक्स वैल्यू होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट 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 लाइक 0, 2, 4, 5 इन नंबर्स। वेरिएबल वेरिएबल लाइक x, y, z. The polynomial has many types like cubic polynomial, quadratic polynomial, constant polynomial, or linear polynomial. Constant polynomial, which means have degree is 0. If the number x to the power 0 is known as constant polynomial, like 1. If the degree is 1, like z square power 1, 2x plus 3, where x to the power 1 is known as linear polynomial. This polynomial show that according to a degree, if any equation which have degree 1 are known as linear. If the quadratic equation which have degree 0 are known as constant. If the any polynomial the degree have 2 are known as quadratic. If the polynomial which have degree is 3 are known as cubic. Now proceed from next topic. Now this is I 2.1. Find the degree of the polynomial. Now the first question is 2x square minus 5x plus 3. The degree is 2. The highest power of degree is 2, like 2x square minus 5x plus 3 is equal to degree is 2. This is answer. Now the second question is y cube plus 2y minus 1. The degree is 3. This is only constant, so that this degree is 0. This is linear, z power 1 is equal to linear, degree is 1. Now continue to the second. Write the polynomial of degree 1. First degree is equal to 2x plus 5. Now the second degree 4x square plus 3. Third degree 3x cube plus 2. On making question number 3, what are the constant coefficient of x square and y cube in the polynomial? The polynomial is this x square from this, so we consider 6x square. 6 is the constant of x square, coefficient of x square. Now this is this term minus 3x cube. The coefficient of x cube is minus 3. ये एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का. A chess club charge a joining of fees to 200 plus
50 for the every match player. The following table shows the amount of their pay according to the matches for each. Now we can say the number of match is 1. The payment is 200. Now the first is 200 plus 50 is equal to 250. So that first match is 250, second match is 300, third match is 350, fourth match 400, five matches. So we can say this is the formula of 200 plus 50 meter, 50 m. M is according to match. तो हम एक्सरसाइज 2.2 पे जाएंगे. Find the value of linear polynomial. The polynomial is 5x minus 3. Now the first is x is equal to 0. If put x is equal to 0 from this equation, the answer is minus 3. Now the second is 5x minus 3. If put x is equal to minus 1, now 5 minus 1 minus 3 is equal to minus 8. Now the third question is 5x minus 3, x is equal to 2. On that condition, 2 into 5 minus 3, 2 into 5 minus 3 is equal to 13. Now the second question is find the value of quadratic polynomial 7s square minus 4x plus 6. Now the first question is 7s square minus 4s plus 6, s is equal to 0. On that condition, this is 0, this is 0, answer is 6. Now the second and third is homework. Now the fourth question is the difference between two positive integers is 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find two integers. बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस 63 है. इनका रेशियो दिया गया है 2:5. रेशियो है 2:5. तो वो दोनों इंटीजर क्या होगा? लेट फर्स्ट इंटीजर इज 5x. नाउ सेकंड इंटीजर इज minus 2x. Difference between minus is equal to 63. Now x is equal to, on solving x is equal to 21. The value of x is 21. Now the first integer is 2x is equal to 21 into 2, 42. Now 5x is equal to 21 into 5 is equal to 105. The difference is 105 minus 42 is equal to 63. Now the fifth question is Ruby has 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. If she has total 88, how many coins does he have? Now the first coin is 3 times of 2 coin, this means 2x is equal to 6x. Now the 5 coin is 5x. The total is 5x plus 6x is equal to 88. The value of x is 8. Now the 2 rupees coin is 6x, which means 6 into 8, 48. And 5 rupees coin is 5x is equal to 8 into 5, 40. The sum of 40 plus 48 is equal to 88. Now the seventh question is if the length of rectangle is 3 more than twice its breadth,
and its perimeter is 24. Let this is one type of rectangle. Let breadth is equal to x, length is equal to 2x plus 3, perimeter is equal to given 24 centimeter. Now perimeter is equal to 2 bracket में L plus W is equal to 24 given. Now 2 2x plus 3 plus x is equal to 24. On solving x is equal to 3. Breadth is equal to x is equal to 3 centimeter. Length is equal to 2x plus 3 is equal to 2 into 3 plus 3 is equal to 9 centimeter. Let we have proceed from exercise 2.3. Now the 2.3, the first question is a student has 500 in her saving bank account. She get 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? Find the linear expression to express the amount she will have in the next n month. बेसिकली इसमें बोल क्या रहा है, एक लड़का उसके पास 500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में है जो कि 150 रुपए हर मंथ को खत्म कर रहा है, तो उसका क्या होगा बेसिकली. नाउ लेट month money if month is 0 money is 500. If month is 1 the money is 500 minus 150 is equal to 350. Second month minus 150 is equal to 200. Third month minus 150 is equal to 50. This is the actual decay of the money. The equation is HM, total money is 500 minus 150 M, where M is the month of spent. This is the equation. The second month is H. The second month is HM is equal to 150 is equal to 500 minus 150 into month is 200. Now the second question is a rally start with 120 members. Each hour 9 members drop out from the group. How many members will remain 1 hour, 2 hours, 3 hours? Find the linear expression of represent the number of members at the end of an hour. एक रैली इसमें 120 लोग हैं, 1 घंटे के अंदर 9 लोग उस रैली को छोड़ दे रहे हैं, तो 1 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे, 2 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे, 3 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे. नाउ द इक्वेशन इज HM 120 minus 9M. M is equal to hour. So the graph is hour member. 0 hour is equal to 120 member. 1 hour is equal to 120 minus 9. 1 member. 2 hours is equal to 102 member. 3 hours is equal to 93 member. 4 hours is equal to 84 member. Now the third question is, suppose the length of rectangle is 13 centimeter. The area of breadth
If first is 12 centimeter, second is 10 centimeter, third is 8 centimeter, find the linear pattern representing the area of rectangle. Now the fourth question is, suppose the length of rectangle box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. The value of height is 5 centimeter, 9 centimeter, 13 centimeter. Find the linear pattern representing the value of the rectangular box. Now length is equal to 7, breadth is equal to 11, height is equal to 5, volume is equal to LBH is equal to 11 into 7 into 5 is equal to 1 is equal to 385. Now the second is H is equal to 9 on that condition 7 into 11 into 9 is equal to 693. If H is equal to 13 on that condition 7 into 11 into 13 is equal to 1001. We can see that they increase linear by 4. They increase linear by 4 in the height. 5 plus 4 is equal to 9. 9 plus 4 is equal to 13. Now the fifth question is, Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages daily. How many pages she left after the 15 days? Express in pattern. Now the equation is St is equal to 500 minus 20 d. D is equal to day. The graph pattern is page day. 0 day 500 page. First day 500 minus 20 480. Third day 460. Second day. Third day 440. Fourth day 420 respectively. Now what is after 50 days? So St is equal to 500 minus 20d is equal to 500 minus 20 into 15. 15 is in 15 days is equal to 200 pages remain after the 50 days. अब हम देखेंगे लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके. लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके क्या होता है? लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके. जैसे मान लीजिए कोई आज किसी के पास 100 रुपीज है, कल 120 हो गया, परसों 140 हो गया, उसके बाद 160 हो गया. तो इसमें क्या है, 20 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा है, लीनियरली इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ. मान लीजिए किसी के पास 100 रुपीज है, अगले दिन 80 हो गया, अगले दिन 60 हो गया, अगले दिन 40 हो गया, अगले दिन 20 हो गया. इसमें क्या है, लीनियरली 20 का डिक्रीमेंट आ रहा है, जिसको बोलते हैं लीनियर डिक्रीमेंट. जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है, द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन इन लीनियर फंक्शन सी डी इक्वल टू 100 plus 60d, where C indicate the total cost of rupees and D is D is distance travel in kilometer.
Then this is one type of table from this equation. Now we can say that distance in table d in kilometer, cost in c. यदि डिस्टेंस 0 का है तो कॉस्ट 100 रुपीज, डिस्टेंस 1 हो गया तो कॉस्ट हो गया 160, डिस्टेंस 2 हो गया तो कॉस्ट हो गया 220, डिस्टेंस 3 हो गया तो कॉस्ट हो गया 280। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, इसको एक लीनियर ग्रोथ है ना, बेसिकली इसमें क्या है 60 रुपीज फिक्स अमाउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए लीनियर ग्रोथ हो गया। नाउ टेक एन अदर एग्जांपल, अ टैंक ऑफ वाटर सिलेंडर इज 3 मीटर। ये कोई टैंक ऑफ वाटर है, इसका हाइट है 3 मीटर। h is height, the height h meter at the end of t month begin the linear exponential। इसका इक्वेशन बन रहा है एच टी इक्वल टू 3 माइनस 0.5 टी। टी इसमें क्या है, मंथ है, तो इसमें क्या है बेसिकली 3 मीटर ऑफ वाटर है और हर मंथ 0.5 मीटर ऑफ वाटर डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा देखिए, वाटर टैंक, वाटर कितना होगा 0 मंथ में, कितना होगा 3 मीटर, 1 मंथ होगा तो क्या होगा, टैंक में कितना पानी बचेगा, तो 3 - 0.5 2.5, सेकेंड में कितना होगा 2, थर्ड में कितना होगा 1.5। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, लीनियर डिक्रीमेंट हो रहा है कितने का, लीनियर डिक्रीमेंट हो रहा है कितने का 0.5, इसलिए बोलते हैं, इसको बोलेंगे लीनियर, इसको बोलेंगे लीनियर डीके। Now we proceed from exercise 2.4. Suppose a plant has 1.7 feet, 1.75 feet, it grows 0.5 feet every month। एक प्लांट है, इसका लेंथ है, हाइट है जो भी है 1.75 मीटर, 1.7 फीट, हर मंथ 0.5 फीट क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब लीनियर ग्रोथ हो रहा है। तो व्हाट, फाइंड द हाइट ऑफ 7 मंथ, मेक द टेबल ऑफ 0 to 10 month and show the height of increment every month, find the expression where in the form of t and h। Okay, now table is the table is m h, 0 मंथ में कितना होगा इसका, 0 मंथ 1.75, 1 मंथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.25, इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है 0.5 का, 0.5 का इंक्रीमेंट। सेकेंड मंथ होगा क्या होगा 2.75, इसी तरह 10 मंथ तक का बनाना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7 मंथ। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज एच एम इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 एम, सो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 5.25। तो आफ्टर 7 मंथ दिस इज 5.25 फीट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मेक द टेबल, टेबल पहले ही बना दिए थे। द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक्सप्रेशन इक्वेशन इसका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा एच टी इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी, और क्या होगा ये होगा लीनियर
growth. Now the second question is, a mobile phone brought 10,000. एक मोबाइल फोन है जिसको किना गया है 10,000 का, तो उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 800 एवरी ईयर। एक फोन है 10,000 का, तो उसमें 800 हर मंथ कम हो जा रहा है। तो आफ्टर द सॉरी हर मंथ हर साल कम हो जा रहा है। तो आफ्टर द वैल्यू ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा, तो 3 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा। पहले इसका इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन देगा एच टी इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। तो 3 साल बाद क्या होगा, 10,000 माइनस 800 इंटू 3। तो 10,000 बाद इसका आएगा आंसर आफ्टर 3 ईयर, इसका आंसर आएगा 7600 रुपीज। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, मेक द टेबल ऑफ टी। ओके, 0 से 8 साल तक बनाना है, तो इसका देखते हैं। ईयर या वैल्यू, तो 0 साल में होगा तो कितना वैल्यू इसका होगा, 10,000। 1 साल का हो जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 10,000 से 800 बटा देंगे कितना आएगा, 9200, 9200। 2 साल बाद कितना होगा, 8400। 3 साल बाद कितना होगा, 7600। इसी तरह बनाना है 10 साल तक के लिए, 8 साल के लिए। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज, फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू वी एंड टी रिप्रेजेंट द रियल इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन तो इसका ही होगा, वी टी इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। और ये क्या है, ए लीनियर डीके, लीनियर डीके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, a telephone company charge 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced 15 rupees every day after the recharge. ये कोई कंपनी है सिम का, टेलीकॉम कंपनी, जो कि 600 रुपीज का रिचार्ज करा रही है। अब बोल रही है कि 15 रुपीज पर डे कम होगा। 600 का रिचार्ज है। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, वाइट द इक्वेशन ऑफ मॉडल। ठीक है, पहला इसका इक्वेशन बताना है, तो इक्वेशन कैसा होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x, x is the day, this is the equation. Now the second question is, after how many days will the balance run out। कितने दिन बाद जो है इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली उसी इक्वेशन में प्लॉट कर देते हैं, बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x इक्वल टू 0 इक्वल टू 600 माइनस 15x, एक्स इक्वल टू 40। तो 40 दिन बाद इसका बैलेंस 0 हो जाएगा एकदम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेक द टेबल फॉर 1 to 10 days। ओके, एक्स बी एक्स, 0 डे होगा तो कितना उसमें बचा होगा 600। 1 डे होगा तो कितना बचेगा, उसमें 15 घटा देंगे, 600 माइनस 15 कितना होगा, 585। सेकेंड डे कितना बचेगा, 570। थर्ड डे कितना बचेगा, 555। फोर्थ डे कितना बचेगा, 540। इसी तरह 10 डे के लिए बना लेना है। अब हम लोग देखेंगे लीनियर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन x and y. We can say that y is equal to ax plus b, where y and x is equal to वेरिएबल, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। और a और b क्या होता है, कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है। तो रीनियर रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे जिसमें x और y का दोनों का एक साथ आएगा, उसको हम लोग बैलेंस करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसे बोलते हैं रीनियर रिलेशनशिप। इसमें क्या आएगा, इसमें अलग अलग इक्वेशन आएगा, जैसे 350
इक्वल टू 10a प्लस b 300 इक्वल टू 10a प्लस b। इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली इसमें यही है, इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल बिटवीन एक्स एंड वाई। इसमें दो वेरिएबल चाहिए, एक एक्स चाहिए एक वाई चाहिए, सिंगल वेरिएबल में काम नहीं करता। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.5, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, A learning platform charge fixed monthly fees and additional cost of digital learning, including the asset the student observed at the C across 10 module of the bill is 400। 10 मॉड्यूल का बिल आ रहा है कितना, 400। When C across 14 module bill is 500। यदि 14 मॉड्यूल है तो उसका बेस आ रहा है 500। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में बताना, और इसका इक्वेशन लेंगे वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ओके, नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज इफ एक्स इक्वल टू 10 y इक्वल टू 400। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 10a, इसे प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस बी पे, 10a प्लस b इक्वल टू 400। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज इफ x इक्वल टू 14 y इक्वल टू 500। द इक्वेशन इज 14a प्लस b इक्वल टू 500। दिस इज इक्वेशन सेकंड। On solving the both equation, first and second, the value of a equal to 25, the value of b equal to 150। This is the final answer. Now proceed from second question. A gym charge fixed monthly fees of additional cost of per hour using the badminton court. The student using the gym observed that when she used badminton court of for 10 hours will be 10 घंटा यूज करते हैं बैडमिंटन कोर्ट को, उसका वैल्यू उसका कॉस्ट आ रहा है 800। यदि 15 आवर यूज करते हैं तो उसका आ रहा है 1100। इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सेम पीछे पीछे वाले की तरफ क्वेश्चन नहीं दिया, तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। पहला इक्वेशन बनेगा इस पे, दूसरा इक्वेशन बनेगा इस पे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। द फर्स्ट इक्वेशन इज 10a प्लस b इक्वल टू 800। द सेकेंड इक्वेशन इज 15a प्लस b इक्वल टू 1100। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे बोथ इक्वेशन को, तो a का वैल्यू आएगा 60, b का वैल्यू आएगा 200। दिस इज द एक्चुअल आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by C equal to AF, A angle B, and find A and B is given ice melting degree Celsius of 32 degree Fahrenheit and water boil 100 degree Celsius in Fahrenheit। देखिए और आसान है, उससे पहले से ज़्यादा आसान है, इसको देखते हैं कैसे होता है। तो पहले के लिए लेंगे C इक्वल टू A गिवन है, F इक्वल टू B गिवन है, यहाँ तो कोई डाउट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इसका, फ्रीजिंग पॉइंट 32a प्लस b इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन हो गया। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या हुआ, 212 a प्लस b इक्वल टू 100। आफ्टर दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आफ्टर सॉल्विंग बोथ इक्वेशन a इक्वल टू 5.9 एंड b इक्वल टू -160/9। तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या आ रहा है, c इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में f माइनस 32। This is the final equation of this question.
अभी हम लोग देखें कि लीनियर रिलेशनशिप क्या है। अब उसको हम विजुलाइज करेंगे, विजुलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होगा, ये तो और आसान है उससे पहले से। तो इसमें क्या होगा, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इजकल टू माइनस वाई, एक्स इजकल टू 2y। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली वैल्यू प्लॉट करना और चेक करना है किस ग्राफ में बन रहा है, किस लीनियर बन रहा है। तो इसके लिए हम बार ग्राफ का उपयोग करेंगे, और बार ग्राफ हमारे लिए बहुत ही अच्छा पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की दो वैल्यू आएगी, तो उसके लिए अलग अलग ग्राफ यूज करना पड़ेगा। तो जैसे बार ग्राफ में होता क्या है, इसमें अलग अलग बॉक्स बने होते हैं, उसमें अलग अलग नंबर दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको प्लॉट करते हैं। तो एक कोई फिक्स शेप बनता है, या तो कोई ग्राफ बनता है। यदि ऊपर जाए तो लीनियर ग्रोथ है, नीचे आ रहा तो डिले। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ग्राफ है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इस पे अपवर्ड जा रहा है तो लीनियर ग्रोथ हो गया, यदि इसमें डाउनवर्ड जा रहा है तो लीनियर डीके हो गया। बेसिकली इसमें ही देखना है, और वैल्यू को प्लॉट करके उसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है कि ड्रॉ द ग्राफ एंड द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन रिफ्लेक्शन ऑफ रोल ए एंड बी। इसमें तीन इक्वेशन दिया गया। पहले क्वेश्चन में लिखा जाए तो y इक्वल टू 4x, दूसरा दिया y इक्वल टू 2x, तीसरा दिया y इक्वल टू x। तो इसको पहले प्लॉट करके इसका नंबरिंग पहले इसको प्लॉट करके इसका नंबरिंग निकालेंगे बेसिकली। ओके, द फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल टू 4x। तो ऐसे करेंगे इसमें, इसमें लेंगे x, इधर लेंगे y। एक्स वैल्यू जीरो रखें तो आएगा वैल्यू जीरो, एक्स वैल्यू वन रखें तो आएगा वैल्यू आएगा फोर, एक्स वैल्यू टू रखें तो आएगा वैल्यू आएगा एट। इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 0,0, 1,4, 2,8। ये इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे y इक्वल टू 2x। सेम वही फिनोमेना एक्स वाई, एक्स वैल्यू जीरो रखेंगे तो आएगा जीरो, एक्स वैल्यू वन रखेंगे तो आएगा टू, एक्स वैल्यू टू रखेंगे तो आएगा फोर। इसका भी कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 0,0, 1,2, 2,4। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। इसको भी सेम उसी फॉर्म में करेंगे, एक्स वाई, वन रखेंगे तो वन, टू रखेंगे तो टू, थ्री रखेंगे तो थ्री, जीरो रखेंगे तो जीरो। इस इसका भी पॉइंट करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अब जितना ही पॉइंट दिया कि इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ पेपर है, तो 2.6 का पहला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बना था उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पहला इक्वेशन था जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पे जीरो जीरो का आएगा, जीरो 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 आएगा। एक मिनट, तो एक्स जीरो जीरो पे जीरो जीरो आएगा, पहला ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो जीरो 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 आएगा, उसके बाद वन पे आएगा फोर, वन पे आएगा फोर, तो वन टू थ्री फोर, वन फोर आ गया यहाँ पे, टू पे आएगा एट, टू पे एट यहाँ कहीं आएगा। तो इसका इक्वेशन बन रहा है ऐसे। तो इस इक्वेशन का नाम है वाई इक्वल टू 4x। उसका दूसरा इक्वेशन जो था वाई इक्वल टू 2x, उसका क्या बनना था, जीरो पे जीरो, वन पे टू, तो वन पे टू, टू पे टू पे फोर, तो टू फोर, तो वन टू थ्री फोर, टू फोर। तो एक इक्वेशन ऐसे बन रहा है बेसिकली ओरिजिन से पास होते हुए। तो इसका इक्वेशन आ रहा था वाई इक्वल टू 2x। एक थर्ड था वाई इक्वल टू एक्स, तो उसका इक्वेशन बनता वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री। तो उसका कुछ ऐसा बनेगा। इस इक्वेशन का था वाई इक्वल टू एक्स। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ। इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिया, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन दिया वाई इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन दिया वाई इक्वल टू -6x, वाई इक्वल टू -3x, वाई इक्वल टू -x।
इसका प्लॉट करके देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कैसे बनता है। तो पहला इक्वेशन लेंगे y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -6x। तो इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा करेंगे पहले x y, x वैल्यू 0 रखेंगे तो y वैल्यू जाएगा 0 आएगा, x वैल्यू 1 रखेंगे तो y वैल्यू -6, x वैल्यू -1 रखेंगे तो y वैल्यू 6। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट y इक्वल टू -3x। इसको इससे हम उसी तरह प्लॉट करेंगे एक्स वाई, एक्स वैल्यू 0 0, एक्स वैल्यू 1 तो -3, एक्स वैल्यू 2 -1 तो 3। इसका एक पॉइंट बनेगा 0 0 0 1 -3 -1 3। अब तीसरा इसमें चेक करेंगे, तीसरा है y इक्वल टू -x। इसमें प्लॉट करेंगे, यदि एक्स वाई, एक्स वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, एक्स वैल्यू 1 है तो -1 आएगा, यदि एक्स वाई का एक्स वैल्यू -1 है तो 1 आ रहा है। इसका भी पॉइंट बन रहा है, कौन कौन सा पॉइंट बन रहा है, इसमें पॉइंट बन रहा है 0, 1, -1, -1, 1 बेसिकली। इसको क्या करेंगे, अब सीधे प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। चलिए वह चेक कर लेते हैं इसमें कुछ। तो दिस इज वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। 0 पे 0, 1 पे -6, 1 पे -6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 -6 यहाँ नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, 1 पे -6 और -1 पे 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है। तो कुछ पॉइंट ऐसे बन रहा है, कुछ पॉइंट ऐसे बन रहा है, ओरिजिन से पास होते हुए आएगा ऐसे। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, y इक्वल टू -6। अब सेकंड इक्वेशन से चेक करते हैं, 0 पे 0, 1 पे -3, 1 पे -3, दिस पॉइंट -1 पे 3, -1 पे 3 दिस पॉइंट। तो ये कुछ ऐसे बनेगा और इनसे पास होते हुए आएगा, ऐसे निकलेगा। तो इस इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू -3, -3x। अब थर्ड इक्वेशन का y इक्वल टू -x का था, तो 0 पे 0, 1 पे -1, 1 पे -1 और -1 पे 1, तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का नाम है y इक्वल टू -x। चलिए आप इसी ग्राफ को बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और कोई इसमें डाउट नहीं है, बहुत अच्छा दिखेगा। नाउ विल प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ द चैप्टर। तो इसमें बोल रहा है कि एंड ऑफ द चैप्टर में क्या है, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। उसका डिग्री 3 होता है, वेरिएबल एक्स होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का टर्म कितना होना चाहिए, -n होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया x³ -7x² +2, एक्स कोफिशिएंट का हो गया -7 और डिग्री है 3। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट। नाउ सेकंड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इंडिकेट। इसमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। पहला इक्वेशन क्या है, 5x² -3x + 7, x इक्वल टू 1 दिया है तो x की जगह 1 रखना है। तो 5 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 7, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 9। नाउ द सेकंड इज 4t³ नाउ द सेकंड इज 4t³ -t² + 6, 80। इसका बोल रहा है कि t यहाँ a रखना है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ a रख देंगे। तो इक्वेशन इसका बनेगा 4a³ -a² + 6। कितना आसान था, ओके। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द सेवेंथ क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप y x। बेसिकली इसमें भी ग्राफ प्लॉट करना है। पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -3x + 4। दूसरा इक्वेशन है 2y इक्वल टू 4x + 7। तीसरा इक्वेशन है
5y इक्वल टू 6x-10। चौथा इक्वेशन है 3y इक्वल टू 6x-11। पहले इसका पॉइंट निकालना पड़ेगा हम लोग। चलिए पॉइंट निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4। तो ऐसे लिखते हैं x y, 0 रखेंगे तो आएगा 4, 1 रखेंगे तो आएगा 1, 2 रखेंगे तो आएगा -2। पहला इक्वेशन, पहला का पॉइंट निकल गया। और दूसरे का पॉइंट निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन है 2y इक्वल टू -4x प्लस 7 माइनस 1 है 4x प्लस 7। तो इसका एक्स वाई निकालते हैं। 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है 3.5, 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है 11.7, 2 रखेंगे कितना आ रहा है 15/7। अब तीसरे का निकालेंगे। तीसरा क्या है इक्वेशन, 5y इक्वल टू 6x-10। इसमें सेम वही करेंगे x y, 0 रखेंगे तो -2, 1 रखेंगे तो -4/5, -1 रखेंगे तो आएगा कितना -16/5। अब चौथे इक्वेशन के लिए देखा जाए। चौथा इक्वेशन क्या है 3y इक्वल टू 6x-11। इसमें करेंगे x y की वैल्यू निकालते हैं। 0 रखेंगे तो -11/3, 1 रखेंगे तो -5/3, -1 रखेंगे तो आएगा -17/3। अब इन सभी पॉइंट को क्या करेंगे, एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। गणित मंजरी फॉर क्लास 9 ऑन द न्यू NCERT सिलेबस। थैंक यू।